YouTube family, hope you all are fine. Today we are going to start topic lipids. आज हम डिस्कस करेंगे कि लिपिड्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं. इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर लिपिड्स. कि लिपिड्स हमारे पास क्या होते हैं. लिपिड्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल मेड अप ऑफ फैटी एसिड मोनोमर्स. लिपिड्स क्या होते हैं. मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि फैटी एसिड्स के बने हुए होते हैं. Function of lipids including structural support for the cell, energy storage and cell signaling. तो उनके functions हमारे पास क्या है कि वो क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं, सपोर्ट करते हैं सेल के स्ट्रक्चर में और सेल सिग्नलिंग के लिए भी काम करते हैं. लिपिड्स आर नॉन पोलर इन नेचर एंड डू नॉट इंटैक्ट विद वाटर. लिपिड्स क्या है हमारे पास, नॉन पोलर इन नेचर है. दे कैन बी soluble in organic solvent, not in water. So there are main types of lipids are triglyceride, phospholipids and steroids and waxes. Now the second question is what are the properties of lipids? The lipids are heterogeneous group of compound related to fatty acid. Heterogeneous compound means they have diverse characteristics and they have diverse properties. Hetero different genus groups यानी कि हमारे पास इसमें different तरह के groups आते हैं. Different groups आते हैं glycolipids, phospholipids, इसलिए हम इनको कहते हैं they are heterogeneous groups. They are insoluble in water but soluble in organic solvent such as ether, alcohol, chloroform and benzene. Lipids includes fats, oil, waxes, cholesterol and related compounds. Lipids are hydrophobic compounds, are components of cellular membrane. They are hydrophobic in nature. They repel water. They can store energy. They provide isolation against atmospheric heat and cold and also act as waterproof material. Why they act as waterproof material? Because they are hydrophobic compounds. So they are they act as waterproof material. Now next question is what lipids are called as, why lipids are called as high energy molecule. As we know that lipids are composed of carbon, hydrogen and oxygen. The higher proportion of carbon and hydrogen bond and lower proportion of oxygen made the lipid a higher energy molecule. That's why lipids store double the amount of energy as compared to the same amount of any carbohydrate. Now what are the functions of lipids? Lipids first function is they are a good insulator of the body, precursor to hormones, cellular signals, they provide cellular signals, surrounding protecting and holding in place organs such as kidney, heart and liver. ये क्या करते हैं कि ये जो डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, जो विस्ट्रल ऑर्गन्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं. Regulation and excretion of nutrients in the cell. As an energy source, lipid provide 9 kcal of energy per gram. It is important one कि लिपिड हमारे पास कितनी एनर्जी देते हैं, 9 kcal of energy per gram देते हैं. Triglyceride provide energy stored in adipocytes. Phosphoglycerides, sphingolipids and steroids are structural components of cell membrane. Now, which lipid are structural component of cell membrane? Phosphoglycerides, sphingolipids and steroids. Steroid hormone are critical intercellular messengers. Steroid hormones are critical intercellular messengers, यानी कि सेल के अंदर अंदर ही क्या करते हैं, सिग्नलिंग मैसेंजर का काम भी करते हैं. Lipids soluble in vitamin A, E, D, K. लिपिड सॉल्युबल विटामिन हमारे पास कौन कौन से हैं, ए ई डी के. ए ई डी के हमारे पास जो विटामिन हैं वो लिपिड सॉल्युबल हैं. क्यों? क्योंकि वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे. लिपिड्स भी हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर है. दैट्स वाई विटामिन ए ई डी के आर सॉल्युबल इन लिपिड्स. Dietary fat act as a carrier of lipid soluble vitamins into cells of small intestine. Provide shock absorption and insulation. They also act as shock absorption. ये कैसे शॉक एब्जॉर्ब करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है या लो हो रहा है तो वो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे विस्ट्रल ऑर्गन्स को फ्रॉम द हीट,
कि एकदम से जो टेम्परेचर डाउन जा रहा है या हाई हो रहा है तो उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो एक्ट करें एज अ शॉक एब्जॉर्प्शन एंड एज एन इंसुलेटर. Now, while lipids are insoluble in organic solvent while soluble in organic solvent, अब वो पूछ रहा है कि हमारे पास lipids क्यों insoluble हैं inorganic solvent में जबकि हमारे पास soluble हैं organic solvent में. Organic solvents में आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि inorganic solvent में हमारे पास poles होते हैं. अब lipids में हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से lipids जो हैं वो organic solvent में soluble हैं. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे तो लिपिड बाइलेयर, ये जो एक लेयर सी बनी हुई है हमारे पास, इसमें क्या है, पोलर हेड और हाइड्रोफिलिक विच इज़ हाइड्रोफिलिक. ठीक है, हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग. पोलर हेड्स हैं विच आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर. लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, नॉन पोलर टेल्स हैं. नॉन पोलर टेल्स क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है. इन्हीं नॉन पोलर टेल्स की वजह से हमारे पास लिपिड्स जो है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होता, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजोल्व हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आप स्ट्रक्चर देखें, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड द साइटोप्लाज्म. अब ये देखें लिपिड्स की जो हमारे पास लेयर आ रही है, हमारे पास ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स आ रही हैं, ये हाइड्रोफोबिक टेल्स जो हैं ये इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में लिपिड्स को डिसॉल्व नहीं होने देती, जबकि ये वाटर के ऊपर इनकी एक लेयर डिस्पर्स हो जाती है, यानी कि डिस्पर्स हो जाते हैं वाटर के ऊपर. ये इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, जबकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं. नाउ व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लिपिड. कंपोजिशन ऑफ लिपिड में हमारे पास हमें सबसे पहली बात तो ये पता है कि इसमें क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा. उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि फैटी एसिड स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यानी कि हमारे पास ग्लाइसराइड होता है. फर्स्ट वन हमारे पास फैटी एसिड होता है, दूसरा ग्लाइसराइड ग्रुप होता है जो कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एज एन एक्ट करता है. अब ये जो हमारे पास लिपिड्स की फैटी एसिड होते हैं वो दो तरह के फैटी एसिड हो सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ग्लाइसराइड. ग्लाइसराइड हो सकते हैं, न्यूट्रल ग्लाइसराइड भी हो सकते हैं और फॉस्फोग्लाइसराइड भी हो सकते हैं. न्यूट्रल ग्लाइसराइड तो नॉर्मल ग्लाइसराइड होंगे, लेकिन फॉस्फोग्लाइसराइड जो होंगे इसमें फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास एडिड होगा. उसके अलावा जो हमारे पास लिपिड हो सकते हैं वो नॉन ग्लाइसराइड लिपिड हो सकते हैं, विच में भी वैक्सेस, फिनोलिपिड्स, स्टीरॉइड्स, और फर्दर ये डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं इनटू स्विंगो, माइलिन एंड ग्लाइकोलिपिड्स. और उसके अलावा हमारे पास जो लिपिड्स हो सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हो सकते हैं जो कि फर्दर लिपोप्रोटीन्स हो सकते हैं. Now how triglyceride synthesize or what is an ester bond. ठीक है, this is an important question कि हमारे पास ester bond कैसे formation होता है. In our fats, 3 fatty acids are joined to glycerol by an ester linkage, creating a triglycerol or triglyceride. अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ फर्दर 3 फैटी एसिड जो है आके ज्वाइन होते हैं, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है, ट्राइग्लाइसराइड बनता है. और ये जो हमारे पास लिंकेज डिवेलप होता है बिटवीन COC, एस्टर लिंकेज, यू कैन सी इन एस्टर लिंकेज COC, ये जो हमारे पास बॉन्ड क्रिएट हो रहा है इसको हम एस्टर लिंकेज कहते हैं, और इसी के थ्रू हमारे पास एक लिपिड का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ट्राइग्लिसराइड सिंथेसाइज होता है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स. Saturated fats has no double bond between the carbon atom of the fatty acid chain, whereas in unsaturated fatty acid one or more other than one double bond in the fatty acid chains. सैचुरेटेड फैटी एसिड में हमारे पास हाइयर मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हमारे पास लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे. सैचुरेटेड फैटी एसिड एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड की फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे रहते हैं. सैचुरेटेड फैटी एसिड कैन नॉट बी हाइड्रोजनेटेड. Why they cannot be hydrogenated? Because they do not contain double bonds, whereas unsaturated fatty acid can be hydrogenated because they contain hydrogen bond.
Saturated fatty acid have high cholesterol content, whereas unsaturated fatty acid have no cholesterol content. So thank you. Hope you enjoy my video. Kindly subscribe my channel for new updates.